Hello students, hope you are fine and safe at your home. Students, today we will study a new chapter, weather, climate and adaptations of animals to climate. Students, this chapter is very important in all sense, as you know that it is very essential for you to know about the weather, climate and adaptations. You plan many things as per the prediction of the weather. So students, first we will know about the weather. You know that weather and climate have a great impact on our daily life. Weather and climate determine the type of clothes we wear. You know that you wear light clothes in summer and dark clothes in winter, and in winter you also wear the woolen clothes. Like that mode of transport we use, it is also depend on weather and climate up to some extent. Type of food we grow and eat. You know that in rainy season you eat maize, and in rainy season farmers grow paddy, that means rice. All the living organisms are adapted to survive in the climatic conditions of their natural habitat. You also know that different types of plants grow in different at different times. It also depends on the weather and climates. So today we will know only about the weather, the day to day condition. What is weather? Definition of weather will be the day to day condition in the of the atmosphere. You know about the atmosphere, the day to day condition of the atmosphere at a place. Suppose you are living in Guwahati, this means at a place with respect to the temperature. What is temperature of that place? Humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. So the weather means the day to day conditions of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather of that place. Weather changes almost every day and may even change during the course of day. ये हर दिन चेंज होता है, कभी कभी तो दिन भर में कई बार चेंज होता है. आप लोगों ने देखा है, इट में रेन फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बरसात होती है इन द मॉर्निंग एंड देन बिकम सन्नी, धूप निकल आती है, एंड क्लियर राइट आफ्टर दैट, उसके बाद एकदम मौसम जो है साफ हो जाता है. देर आर वेरी, दिस इज द नेचर ऑफ चेंजेज ऑफ वेदर. स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाता है कि वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका एलिमेंट्स ऑफ वेदर. एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी है. एलिमेंट्स ऑफ वेदर. तो स्टूडेंट्स, क्या क्या हो सकता है एलिमेंट्स वेदर? तो सबसे पहला तो हमने बताया कि टेम्परेचर हो जाएगा,
temperature, second humidity, then wind, snowfall, rainfall. So these are the elements of the weather. What do you mean by elements? These elements together make weather. अब वेदर आप लोगों ने देखा है न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पर, वेदर रिपोर्ट आती है डेली। तो वेदर रिपोर्ट कौन तैयार करता है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट का होता है। ये स्टूडेंट्स कलेक्ट डाटा ऑन द टेम्परेचर, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस का तो डेटा कलेक्ट करते हैं ये लोग। उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं क्या इकट्ठा करते हैं? टेम्परेचर का डाटा, ह्यूमिडिटी का डाटा, विंड स्पीड, ये सब के डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर दे प्रिडिक्ट अबाउट द वेदर, और उसके आधार पे ये प्रेडिक्ट करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। वेदर एक्सपर्ट्स यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम ईच स्टेशन एंड सैटेलाइट्स टू प्रेडिक्ट द वेदर। हर जगह से कलेक्ट कर लेते हैं, पूरे कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस से। अब यहाँ पे हमें देखें वेदर ऑफ वीक, देखिए यहाँ पे 7 डेज का एक यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। ये देखिए किसी पर्टिकुलर डेट का मैक्सिमम टेम्परेचर 36.2 रहा और मिनिमम 27.8। और जो यहाँ पे देखिए मिनिमम ह्यूमिडिटी ये 54 रही और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 82% रही। रेनफॉल स्टूडेंट्स, रेनफॉल चूँकि डेली नहीं होती है तो उसको हम गैप छोड़ सकते हैं और जिस दिन होती है उसको हम इसमें इंटर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर 2 डेज का जो टेम्परेचर जो है सेम नहीं है। तो मतलब टेम्परेचर भी कभी ओकेजनली सेम हो सकता है, लेकिन जो है ये बाकी दिनों में ये डिफरेंट ही आता है। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी की यहाँ पे बात करें। अब देखिए टेम्परेचर जो है कैसे रोल प्ले करता है वेदर में, वेदर के चेंज में। तो अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछता है, आपके बुक में भी है, गूगल मीट में मैं पूछता हूँ तो आप लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि पहले जो चीज़ें दी जाती हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डे में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? तो ये जानते हैं आप लोग आफ्टरनून होता है। आफ्टरनून में जानते हैं कि ये सन है, सपोज जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आती हैं आफ्टरनून में, तो मैक्सिमम टेम्परेचर उस समय रहता है। और मिनिमम टेम्परेचर कब रहता है स्टूडेंट? अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो है मिनिमम टेम्परेचर रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है जानते हैं कि आफ्टरनून में। मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में रहता है या नून में भी कह सकते हैं, ये रहता है। तो समर में देखिए आफ्टरनून में आप लोग काफ़ी जो है परेशान हो जाते हैं और मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है रिलीफ फील करते हैं। अब आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था पिछले मेजरिंग ऑफ द टेम्परेचर, तो आपने देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है किस थर्मामीटर से मेजर किया गया था, उसका नाम ही है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ये भी क्वेश्चन है। इसी टॉपिक से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। इसके बाद स्टूडेंट्स अब ह्यूमिडिटी पे आते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है? डेफिनीशन पे पहले समझे। ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ये
किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ये एयर है, इसमें वाटर के कंटेंट कितना है, चाहे वेपर के फॉर्म में है चाहे जिस फॉर्म में है, ये ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइक्लीहुड ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो रेन होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। स्टूडेंट जैसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए जो है एक डिवाइस यूज की गई थी, उस डिवाइस का नाम था मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। ऐसे ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं हाइग्रोमीटर, ये भी है। फिर डिवाइस इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, तो ये क्या हो गया, हाइग्रोमीटर। याद रखना है बिल्कुल। और एलिमेंट स्टूडेंट्स क्या था, वेदर का रेन था। ये देखिए, द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चांस ऑफ रेन। तो रेन को हम कैसे मेजर करते हैं, इसको भी एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसको हम रेन गाज कहते हैं। रेन गाज ये क्या होता है, रेन गाज बेसिकली तो क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर ही होता है। इसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं और यहाँ पे एक फनेल रहता है, इस तरीके से ये रहता है। ये हाइग्रोमीटर है, इससे हम जो है पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम में कितना रेन हुई इसको हम मेजर कर सकते हैं। और डेली का डेटा कलेक्ट करके हम मंथली या वीकली रेन भी जो है हम या एनुअल रेन भी निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे कंट्री में कभी हेवी रेनफॉल होता है, कभी बहुत कम होता है। हेवी जो रेनफॉल होता है वो कब होता है, जून टू सितंबर तक। हेवी रेनफॉल ये जून टू सितंबर तक होता है। इसका रीज़न क्या है, इसको हमें जानेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है ये साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। साउथ और वेस्ट की तरफ से जो मानसून होता है वो जून टू सितंबर तक इधर रहता है, इसलिए हेवी रेनफॉल होता है और ज़्यादातर कंट्री में ऐसा होता है। इधर आप देखिए, जो लो रेनफॉल होता है, लाइटर रेन जो होती है, वो नवंबर टू मार्च तक बहुत कम बरसात होती है। ये जो होती है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो ये तो रेन हो गई। नेक्स्ट, सन कैसे, आपने देखा कि टेम्परेचर जो है चेंज होता रहता है, तो वेदर को निश्चित तौर पर सन कैसे अफेक्ट करेगा। सन इज द व्हाट इज द सन, तो यहाँ पे हम देखें, सन इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है, इट इज द ह्यूज स्फीयर मीन्स गोला, ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस है सन का। सन जो है ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर उसका होता है सन पे। उसका सरफेस का जो टेम्परेचर होता है अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वहाँ हम जा नहीं सकते, उसके पास भी नहीं जा पा सकते। ऑल्दो द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज क्वाइट लार्ज। सन जो है अर्थ से बहुत दूर पर है। सनलाइट जो है सन से अर्थ पर आने में 8 मिनट लगता है, जबकि आप लोग सनलाइट की स्पीड जानते हैं 3 लैख पर किलोमीटर इसकी स्पीड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, तब भी 8 मिनट लगता है। तो सन जो है हमसे इतना दूर है,
फिर भी जो इस अर्थ पर जो एनर्जी के जितने सोर्स हैं वो सब सन से ही डिराइव्ड होते हैं। तो सन क्या हो गया, अल्टीमेट सोर्स है। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो सन ही है, और एनर्जी हमको सन से किस फॉर्म में मिलेगी, या तो जो है हीट के फॉर्म में मिलेगी या तो लाइट के फॉर्म में मिलेगी। और इसी एनर्जी पे हमारा पूरा लाइफ डिपेंड करता है। आप लोग जानते हैं कि इसी लाइट से प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, और उसी फूड पे चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो डिपेंड करते हैं। So students, this is all about the weather. In next video, I would like to explain you about the climate. Thank you.